Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is the video lecture number 11 for the class 12th. Since we are discussing the unit aldehydes and ketones, and in the previous lectures, in the lecture up to the lecture number 10, we were discussing the nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. My dear students, today we are going to discuss another type of a chemical reaction. That means it's also a nucleophilic addition reaction, but in this reaction there is one more step that will be followed, that is followed by the elimination of water. So my dear students, today's topic is about the nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones followed by the elimination of water. This is our today's topic, and there are some important pointers that you have to keep in your mind before we are going to start the chemical reactions. First of all, you have to understand that this type of chemical reaction with aldehydes and ketones is given by ammonia and its derivatives, my dear students. Ammonia and its derivatives, they show nucleophilic addition reactions followed by the elimination of water with aldehydes and ketones. In order to understand this, I just want you to look at this that ammonia is basically NH3. Ammonia जो होता है उसकी फॉर्मूला जो है dear student, that is NH3. इसको अमोनिया कहते हैं. और जहां पे डेरिवेटिव की मैंने बात की my dear students, डेरिवेटिव का मतलब है अमोनिया में से एक हाइड्रोजन सपोज आप बाहर निकालेंगे और उस हाइड्रोजन के बजाय आप कोई ग्रुप डालेंगे, कोई दूसरा ग्रुप डालेंगे. वी कॉल दैट एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. अमोनिया इज दिस, and if you are going to replace suppose one hydrogen atom by any other group, we call that as derivative of ammonia. So derivative of ammonia will have this formula, that means NH3 में से हमने एक H बाहर निकाला है, उसके बजाय हमने कोई ग्रुप डाला है. जब आपने तीन हाइड्रोजन में से एक बाहर निकाला, बचे दो हाइड्रोजन, और जो आपने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बजाय मान लो आपने कोई ग्रुप डाला जिसको मैंने यहाँ पे Z ग्रुप के तौर पे जो है वो दिखाया, रिप्रेजेंट किया. मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो अगर आपके पास अमोनिया है, सपोज इफ यू हैव अमोनिया, दैट अमोनिया इज NH3, दिस इज अमोनिया, and if you are going to replace one H atom, replace one H atom by suppose हम एक Z ग्रुप लेते हैं. Z एक एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है. तो देखिए हमारा क्या बनेगा, देखिए NH3 के बजाय अब एक H बाहर निकाला डियर स्टूडेंट्स, वहां पे H2 रहेगा, और जो आपने ग्रुप ऐड किया वो हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज Z. तो यहाँ पे ये जो आपका बन रहा है NH2Z, Z इज एनी ग्रुप, वी कॉल दैट एज अमोनिया डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. तो कहने का मतलब ये है दैट these reactions means the nucleophilic addition reactions followed by elimination of water is shown by aldehydes and ketones with ammonia and its derivatives. Point number first. Second point that you have to keep in mind that these reactions are catalyzed, yeah, they are done, they are performed in slightly acidic medium. इसका भी रीजन है कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम में क्यों करते हैं. द रीजन फॉर दैट इज दैट द रिएक्शंस, these reactions means the reactions of ammonia and its derivatives with these carbonyl compounds is usually they are reversible in nature. So in order to forward the reaction, in order to proceed the reaction in the forward direction more, so that the product formation will take place easily, we have to keep the medium acidic. In other words, we can say this slight acidic medium acts as some sort of catalyst in the system. So that's why I have wrote over here point number 3. Point number 2 is already mentioned, that medium is slightly acidic, that I'm going to show in the reaction mechanism. Number third important point is that acidic medium will favor the reaction in the forward direction. So I already explained you, I already told you that this acidic medium is basically required for favoring the reaction in the forward direction, because in principle these reactions are usually reversible in nature. Number 4 point is that loss of water, as already mentioned, that in these reactions elimination of water takes place, means loss of water takes place in these reactions. That's why these reactions are also called as condensation reactions. My dear students, I want you to clear this point, that condensation reactions are those types of chemical reactions in which usually any small molecule
from the substance is eliminated. It can be water, it can be any other small molecule. But if there is an elimination of water, we can call that as dehydration as well. लेकिन अब elimination water का होगा या dear students किसी और का होगा, such reactions are generally categorized as condensation reactions. So these types of reactions which we are going to discuss are basically the examples of condensation reaction. And the last point, but not the least point that you have to understand, is that when there is a formation of a product, when there is a formation of product, you will see that in product there will be this structure. There will be this structure. That means C double bond N, and of course, since मैं यहाँ पे Z ग्रुप जो है वो डेरिवेटिव में डाला है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये Z जो है ये लास्ट में रहेगा, बिकॉज आपको पता है नाइट्रोजन माय डियर स्टूडेंट्स 3 बॉन्ड बनाता है. दिस इज कार्बन नंबर, एक कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाए यहाँ पे, एंड यहाँ पे Z के साथ 1 बनाए. अब Z कैन बी एनीथिंग, दैट आई एम गोना क्लियर इट लेटर ऑन. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत ही इजीली आराम से मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा. What I want to say is that during this chemical reaction, by following these steps, important steps, when you will get the product, you will see that in the product there will be this structure. There will be this structure. That means carbon nitrogen double bond. And you already know that carbon forms 4 covalent bonds. So these are the 2 free valencies with which carbon will form 2 bonds. वो जो भी होंगे वो रिएक्शन में देखेंगे. एक अल्डेहाइड होगा, एक कीटोन होगा, तो डिपेंड करेगा. अगर अल्डेहाइड होगा तो यहाँ पे एक R होगा, दूसरा H होगा. और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कीटोन पैरेंट कंपाउंड था तो आपकी दोनों फ्री वैलेंसी जो है ये अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप हो सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट बनता है, अब प्रोडक्ट में ये फाइनल क्या होगा, Z का होगा, वो हम बाद में देख लेंगे. लेकिन देयर इज दिस स्ट्रक्चर, दैट मींस कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो प्रोडक्ट में आता है माय डियर स्टूडेंट्स. सो आई एम जस्ट वांट यू टू गेट द क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ दिस. वी आर डिस्कसिंग द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर इन टुडेस टॉपिक, एंड these reactions are will be given by aldehydes and ketones, and they will be shown with ammonia and their derivatives that I have already made you clear. What does it mean? In these reactions the medium will be kept slightly acidic, and this acidic medium will favor the reaction in the forward direction, because these reactions are usually reversible in nature. And elimination of water molecule, that means the dehydration of water, takes place in these reactions. Therefore these are an example of condensation reaction, my dear students. And the last but not the least point that I already discussed, that when there will be the formation of a product, you will see that there is carbon double bond nitrogen in the structure of the product, my dear students. So let's proceed towards the reaction. So first of all I am going to give you the general mechanism of the reaction, then we are going to move ahead to give some more important points. So let us discuss the general mechanism of this reaction, my dear students. तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा कि इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या है. देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरल मैकेनिज्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें नीट में क्वेश्चन भी आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. देखिए हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, हम आपको पता है हम अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शन करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर. एंड यू नो दैट aldehydes and ketones has this group which we called as carbonyl group, my dear students. You all know that this group is called as carbonyl group. This group is called as carbonyl group. This is the main group on which nucleophilic addition will take place. First there will be a nucleophilic addition, then there will be the elimination of water. So how? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ काम, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कार्बोनिल ग्रुप. ऐसे C डबल बॉन्ड O, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप. अल्डेहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है. अल्डेहाइड है तो R एंड H हो गए यहाँ पे, कीटोन है तो दोनों R हो गए. तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट. मैंने आपको पहले ही कहा है that due to the electronegativity difference between oxygen and carbon atom, million times I have discussed it, the oxygen will develop a slight negative charge, that is shown by delta negative, and the carbon atom will develop a slight positive charge, that is shown by delta positive. Now you already know, since I told you that the medium is kept acidic. The medium is kept acidic. What for that? तो suppose आप मान लो कि मेरे ये जो मीडियम है एसिडिक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीजन पे जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स वो 2 लोन पेयर होती है. तो पहले स्टेप में होता क्या है, बेसिकली पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन. देखिए अब H प्लस जो कि आपने मीडियम एसिडिक रखा है तो उसमें से H प्लस आएगा, बिकॉज एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू गिव
हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। आर्गेनियस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो दिस इज अ रिवर्सिबल स्टफ। लेकिन रिवर्सिबल स्टफ एसिड आपने मीडियम स्लाइटली एसिडिक रखा, तो आप देखोगे ऑक्सीजन पे जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये वही जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो डेफिनेटली यू विल सी दैट द ऑक्सीजन एटम विल गिव इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट। व्हाट विल हैपन, नाउ सी व्हाट विल हैपन, दिस इज अ कार्बन बॉन्ड with the two free valencies. I have written it like this. मैंने अभी नहीं लिखा है क्या है, तो मैं फ्री ही रखूंगा इनको। देखिए अब यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव था, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे दो बॉन्ड्स थे, ऑक्सीजन ने H प्लस को अपनी तरफ खींचा है और ये बनाएगा OH। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की H प्लस को, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब उसकी वजह से क्या होगा, इस स्टफ को आप प्रोटोनेशन स्टफ भी कहते हो। तो दिस स्टफ इज प्रोटोनेशन, दिस स्टफ इज प्रोटोनेशन। सो द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन बाय द एसिड बिकॉज़ द मीडियम इज स्लाइटली एसिडिक। तो आपका जो इंटरमीडिएट बीच में बन गया है, आप यहां पे देख रहे हो दैट फर्स्ट चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट here is the positive charge, that too on the highly electronegative oxygen atom. My dear student, is not a good thing. So what will happen, it will develop inductive effect in this molecule like this. तो यहाँ पे सिंस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ऑक्सीजन एटम की, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा काम, ये इंडक्टिव इफेक्ट से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अब देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब सिंस कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉनिक पुल ऑक्सीजन एटम की वजह से आ गया, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा। मैं प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसा ही कुछ केस था जहां पे मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ पे अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन ने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अपनी तरफ खींचा। Since you are performing this reaction with ammonia and it is derivative, my dear students, मैं यहाँ पे क्या करूंगा था, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, since मैंने डेरिवेटिव जो लिया है अमोनिया का, वो मैंने ये लिया NH2 और मैंने साइड में लिखा है Z, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब देखिए मैं यही इस्तेमाल करूंगा, मैं अमोनिया नहीं लिखूंगा, बिकॉज आप यही लिखो उसके बाद आप कहो कि अगर Z इज इक्वल टू H है, अगर Z H के बराबर है तो अमोनिया ही बन गया। लेकिन मैं खाली अमोनिया के साथ ही रिएक्शन नहीं करवा रहा हूं, मैं इसके डेरिवेटिव के साथ भी रिएक्शन कराऊंगा, तो मैं ये रिएजेंट जनरल लूंगा। फिर अगर आपका अमोनिया है तो Z का वैल्यू उस टाइम H होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में काम हो रहा है, ये NHZ जो देखिए NH2Z, यही आपका मेन रिएजेंट है, NH2Z है यहाँ पे। देखिए My dear students, यहाँ पे NH2Z है, this is your main reagent. Try to understand this point. And you know that इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गई, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। अब आपको पता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो व्हाट विल हैपन, दिस नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू दिस कार्बन एंड व्हाट हैपेंस, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 ऑलरेडी थे, लेकिन जो ही इस नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो एज इफ यहाँ पे 5 बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसलिए दूसरी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन ने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज लिया था, तो यहाँ पे इसीलिए पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे जाता है। उससे क्या होता है, देखिए उससे क्या होता है, उससे यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखो कार्बन ये ऐसे हो गए और यहां से आ गए, देखिए यहां से क्या बन गया NHZ, और एक H में यहां ऐसे दिखाऊंगा, देखिए एक H, बिकॉज NH2 है हमारे स्टूडेंट्स, NH2 और यहां पे Z है। देखिए व्हाट आई वांट टू से इज दैट इस कार्बन, अब देखो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, अब यहां पे आ गया सिंगल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड जो ब्रेक हुआ पाई बॉन्ड, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे आए, उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जब इसे दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उसका चार्ज जो है बैलेंस हो गया, आपका चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपका इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज नाइट्रोजन ने यहां पे लोन पेयर डोनेट की। देखिए हालांकि ये भी क्या होगा, ये भी एक रिवर्सिबल स्टेप होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, देखो अब क्या होगा, अब यहां पे नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन के बाद, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता माय डियर स्टूडेंट्स।
तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये H निकलेगा बाहर, देखो ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस पे लोन पेयर वापस जो है वो रेस्टोर होगी। तो इस पे लोन पेयर वापस रेस्टोर होगी तो वो मैं नीचे लिखूंगा, देखो अब क्या बनेगा, इस पे लोन पेयर तो आ गई, लेकिन उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से H जो है बाहर निकला ब्लैक, माइनस H पॉजिटिव में ऐसे लिखूंगा। तो बना क्या, देखो कार्बन, कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 2, यहाँ नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन N, और एक H बाहर निकला, एक ही H रह गया ऐसे, और यहाँ पे आ गया Z, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आ गया O और H। तो मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखूंगा बिकॉज मुझे अभी यहाँ पे अटैक करवाना है अभी। चलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, देखो ये माइनस H तो बाहर निकला ना, पहले स्टेप में आपने इस्तेमाल किया, ये फिर से बाहर निकल रहा है, तो ये कैटलिस्ट का ही ऐसे काम कर रहा है। देखो फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मैं ऐसे लिखूंगा, देखो कार्बन के साथ क्या है, मैं कार्बन इस साइड बनाता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ से अटैक करवाना है। ये कार्बन है, कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड थे, देखो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड थे फ्री। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बनाया तो वो मैं नीचे से दिखाऊंगा, NH और उसके साथ क्या था Z, एक H तो बाहर चला गया, और यहां से क्या माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से OH। चेक कीजिए इसको, इस स्ट्रक्चर को प्लीज चेक कीजिए, देखिए खुद ही। तो यहां पे देखिए C, यहाँ पे फ्री वैलेंसी 2 है, देखो कार्बन फ्री वैलेंसी 2 है, उसके साथ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना, देखो कार्बन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन जब सिंगल बॉन्ड बना तो उसके बाद नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, देखो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, उसका एक Z है। अब देखो क्या है, अब देखो फिर से क्या हो रहा है, अब सिंस द मीडियम इज एसिडिक अगेन व्हाट विल हैपन, रिवर्सिबल स्टेप में यहाँ पे H+ ये फिर से प्रोटोनेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से प्रोटोनेशन हो रहा है। जब प्रोटोनेशन होगा तो आपको पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फिर से, तो ऑक्सीजन फिर से इसको क्या कर रहा है, ये लोन पेयर जो है उसको डोनेट कर रहा है। जब ऑक्सीजन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, बिकॉज मीडियम इज एसिडिक माय डियर स्टूडेंट्स, H प्रोटॉन्स जो होंगे H+ वो ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम में। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ पे बनाऊंगा C, यहाँ पे वो 2 फ्री वैलेंसी, ये देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे, चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ, नाइट्रोजन यहाँ पे Z, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन ऐसा था, अब मैंने खोल के दिखाया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो था, लेकिन अब ये H+ जब इस पे आ गया तो वो OH2 बन गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो अब ये फिर से वही कंडीशन हो गई, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए, देखो अगर आप यहां पे देखोगे ना इस सिस्टम में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अगर देखेंगे इनमें से अगर किसी एटम को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करना होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं करेगा, तो इनमें से अगर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली, तो वो हाइड्रोजन है। इसलिए क्या होता है काम, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऐसे, ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर वापस लेता है, लेकिन उस वजह से देखो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर वापस लेगा, ये देखो क्या निकल गया बाहर, H2O, वाटर एलिमिनेट होगा, हम तो वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, देखो लास्ट स्टेप में एलिमिनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन की फ्री वैलेंसी हो जाएगी, कार्बन तो फिर 3 ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ रेस्टोर होता है हमारे स्टूडेंट्स, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, और H+ फिर से बाहर निकला, आपका कैटलिस्ट है, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब बन गया कार्बन, देखो कार्बन यहाँ है, कार्बन के साथ कितनी वैलेंसीज है, मैं ऊपर से दिखाता हूँ, फ्री वैलेंसीज 1 2, और उसके बाद क्या है, चलो मैं ये ठीक से बनाता हूँ ऐसे, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कार्बन में यहाँ पे बनाता हूँ, ये रहा कार्बन, ये 2 फ्री वैलेंसीज है, तो वो मैं यहाँ से दिखाऊंगा 2 फ्री वैलेंसीज, जो कि पहले ही फ्री वैलेंसीज थी वही थी। अब देखो वाटर तो एलिमिनेट हो गया माय डियर स्टूडेंट्स बाहर, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस वाटर, यहाँ पे माइनस वाटर, ये रहा आपका एलिमिनेशन कंडेंसेशन स्टेप। और अब देखो अब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान देखो सिंगल बॉन्ड तो था ही, और ये बॉन्ड टूटने से देखो माय डियर स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड आ गया, देखो ये कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ गया, H+ तो माइनस जाएगा नहीं बाहर, वो तो जाएगा ही बाहर, माइनस H+ भी जाएगा बाहर, और आप देखो नाइट्रोजन के साथ क्या है, नाइट्रोजन के साथ Z है। जरा माय डियर स्टूडेंट्स इस कंपाउंड की तरफ देखिए, क्या ये प्रोडक्ट नहीं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दैट प्रोडक्ट जो बनता है इसमें, वो प्रोडक्ट जो है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है, चेक कीजिए, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन रहा है, और बाद में उसका जो ग्रुप है Z वो साथ है, वो Z अगर H है,
यानी कि अगर आपने अमोनिया लिया होता तो वो Z लास्ट में H ही होता। खुद ही देख लो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले H यहाँ पे निकलता है, एक H, दूसरा H यहाँ पे निकलता है। अगर तीसरा भी H होता तो वो तो Z की जगह ही रहता ना, तो वो तो अमोनिया के साथ है। वो रिएक्शन तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है दैट आपको याद रखना है that this is the nucleophilic addition reaction followed by elimination of water, and these are very very important points that I have already discussed with you. अब मैं किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊं, अमोनिया के साथ कराऊं या किसी और डेरिवेटिव के साथ, माय डियर स्टूडेंट्स, कराऊं, प्रोडक्ट जो बनेगा वो यही बनेगा, खाली यानी कि C डबल बॉन्ड N ये ग्रुप तो रहेगा। फिर Z में लास्ट में क्या होगा वो बहुत सिंपल है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। Z में क्या होगा वो बहुत सिंपल है, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें फिलहाल यहां तक समझ आ गई। तो आप इसको क्विक रिव्यू देख लीजिए। मैं अब आपको सारी रिएक्शन अमोनिया के साथ भी और उसके डेरिवेटिव के साथ भी दिखाने जा रहा हूं, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, सिंपल टेबल, और उसमें से मैं बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस एंड वी विल we're going to discuss the reaction with the ammonia and its derivatives in a short while. So my dear students, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया that न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर का जो जनरल मैकेनिज्म मैंने आपको शो किया, उसमें मैंने आपको दिखाया कि जो प्रोडक्ट बनता है इन रिएक्शंस में अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है कार्बन की 2 फ्री वैलेंसीज होती है, whether it's an aldehyde or ketone, you know that, और वहां पे C डबल बॉन्ड N ये स्ट्रक्चर आता है, और बाद में N के साथ यहां से Z होता है, और अगर ZH है तो इसका मतलब है आपने रिएक्शन जो है अमोनिया के साथ की है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से और गौर से इस चीज को देखें और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, अगर मैंने रिएजेंट अमोनिया लिया है NH3, देखिए यहां पे मैंने लिखा है रिएजेंट इज अमोनिया, और यहां पे मैंने नेम लिखा है, इसका अमोनिया है, रिएजेंट का नाम अमोनिया। और आप मुझे बताओ, अमोनिया में से अगर आप 2 H को छोड़ के एक H लोगे, यानी कि Z यहां पे मैंने H लिया, देखो आपको करना क्या है, मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको मैंने प्रीवियस मैकेनिज्म में दिखाया दैट यहां तक तो आपको समझ आया C डबल बॉन्ड N तक कैसे बनता है, और नाइट्रोजन के साथ जो एक वैलेंसी होती थी Z की फॉर्म में, अगर अब Z यहां पे H है, माय डियर स्टूडेंट, Z कब H हो सकता है, खुद ही समझो ना। Z उस टाइम H होगा जब आपने प्रीवियस केस में रिएक्शन की होती अमोनिया के साथ, बिकॉज 2 H प्लस बाहर निकलते थे, तो तीसरा H नहीं निकलता था, यानी कि तीसरा जो था वो Z की फॉर्म में था। अब अगर आपका वो Z H ही है तो वो H तो वहीं पे रहेगा। तो बता मुझे प्रोडक्ट उस टाइम बनेगा क्या, यानी कि अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन करते हो रिएजेंट अमोनिया के साथ, तो मैकेनिज्म ऑलरेडी समझा है मैंने। उस टाइम जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें Z के बजाय आपका ZH आएगा, और ये आएगा। देखिए खुद ही यहां पे देखो, C 2 फ्री वैलेंसी है, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और Z के बजाय माय डियर स्टूडेंट्स आपको H लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शन की अमोनिया के साथ फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा जिसका स्ट्रक्चर ये होगा C डबल बॉन्ड NH। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज रिमेंबर दिस, उन कंपाउंड्स को हम इमीन्स कहते हैं। तो आज के बाद आप जहां पे भी देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H, उन कंपाउंड्स को हम इमीन्स कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब देखिए, आ जाइए दूसरे पॉइंट की तरफ। अब मैं डेरिवेटिव, ये तो अमोनिया के साथ, अब मैं बाकी सारे डेरिवेटिव्स लूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब अगर मैंने यहां मान लो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं अमोनिया में से एक हाइड्रोजन में यहां पे दिखाऊंगा, देखो आपको क्विक रिव्यू दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था, अगर मान लो मैं अमोनिया में से एक हाइड्रोजन में लिखूंगा यहां पे -H, उसके बजाय मैं डालूंगा Z ग्रुप कोई, तो क्या बनता था, NH3 के बजाय रहता था NH2, और H आपने एक बाहर निकाला इसलिए 2 रह गया, और उसके बजाय आपने Z डाला। यही करते थे ना। अब यहाँ पे क्या किया आपने काम, यहाँ पे H के बजाय आपने एक H बाहर निकाला और Z के बजाय आपने R डाला।
तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर आपके रिएजेंट का, NH2 सिंगल बॉन्ड R। तो इसको आप कहते हो अल्काइल ग्रुप, और वो अमोनिया था यानी कि अमाइन, इसको हम कहते हैं अल्काइल अमाइन। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल अमाइन। तो बताओ खुद ही, जरा वहां पे देख लो ना, बताओ मुझे आपका Z क्या है वहां पे, बताओ Z क्या है वहां पे, चेक कीजिए। मैं ये अमोनिया ऐसे भी लिख सकता था, अमोनिया अगर मैं ऐसे लिखता जैसे मैंने बाकी लिखी है, अगर मैं ऐसे लिखता NH2 सिंगल बॉन्ड H, ऐसे देखिए NH2 सिंगल बॉन्ड H, तो Z क्या था, Z तो H था, तो इमीन बन गया। अब दूसरे केस में देखो, आपने अब H के बजाय आप एक H निकाल के आपने R डाला, तो हम क्या कहते हैं उसको, अल्काइल एमाइन। तो आपका Z क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपका ZR है। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, आ जाओ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड N तो हो गई, C डबल बॉन्ड N हो गई, देखो C डबल बॉन्ड N होगा। अब Z के बजाय आपका क्या है, Z के बजाय आपका R है, सबको समझ आ रहा है। तो देखो क्या बन गया, इनको हम कहते हैं, अगर ये इमीन है इसको हम कहते हैं अल्काइल इमीन, बिकॉज ये अल्काइल ग्रुप है। And my dear students, very important conclusion that this compound is known as Schiff's base. This is a very important base in organic chemistry that has many uses that you will understand in the later lectures, जो आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो जहां पे भी आप देखोगे शिफ्स बेस का जिक्र हो रहा है, शिफ्स बेस क्या होती है, C डबल बॉन्ड NR, यानी कि इसको कहते हैं अल्काइल इमीन्स को हम शिफ्स बेस कहते हैं। मैं यहां पे स्टार डाल देता हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेस, शिफ्स बेस इसको कहते हैं। तो आपका कंपाउंड ये बन जाएगा। तीसरी बात, अब अगर मान लो आपने R के बजाय, देखो NH2 तो अपनी जगह है, चेक कीजिए NH2 अपनी जगह है, लेकिन अब मैंने वो जो Z ग्रुप डाला, R के बजाय मैंने ये डाला, देखो ये आपका अब Z, ये NH2। तो आप देखो जब आपका R के बजाय यानी कि H के बजाय जो आपने H रिमूव किया था, Z ग्रुप डाला था, आपका Z अब NH2 है, पूरा Z जो है वो NH2 है। देखो पूरा Z जो है माय डियर स्टूडेंट्स NH2 है, चेक करो। इस कंपाउंड को NH2, ये पैरेंट कंपाउंड है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इस कंपाउंड को, इस रिएजेंट को कहते हैं हाइड्राजीन। याद रखिए हाइड्राजीन होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। आप खुद बताओ इस रिएजेंट में Z कौन सा है, Z है NH2, इसको एमाइन ग्रुप कहते हैं। अब देखो आ जाओ बना प्रोडक्ट। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलरेडी समझा चुका हूं, हमारी बहुत सारी रिएक्शंस एक साथ क्लियर हो रही है। तो बताओ क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट में से C डबल बॉन्ड N तो रखना ही आपको, उसमें तो कोई शक नहीं है। देखो C डबल बॉन्ड N तो रखना ही आपका। अब आपका Z क्या है, वो तो NH2 है, तो देखो मैंने Z के बजाय NH2 डाला। जब आपको ये कंपाउंड दिखे C डबल बॉन्ड N और N के साथ NH2 ग्रुप है, माय डियर स्टूडेंट्स, उस कंपाउंड का नाम है हाइड्राजोन। These are very important conclusions that I am giving you here. What does it mean? It means if you are going to perform the reaction of aldehydes and ketones with the reagent hydrazine, then the compound formula will be hydrazone. तो इस कंपाउंड को आप हाइड्राजोन कहते हो, मैंने साइड में लिखा है नाम। आगे जाएंगे हम नेक्स्ट रिएजेंट की तरफ जाएंगे। अब देखो, अब मैंने Z के बजाय क्या लिया, देखो NH2, चेक करो NH2 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 ये सब में सेम रहेगा। NH2 के साथ देखो इसमें जिगर NH2 और जो साइड में है वो R है, NH2 जो साइड में है वो Z ग्रुप है, Z ग्रुप यहाँ पे Z क्या है H, यहाँ पे Z ग्रुप क्या था R। यहाँ पे देखो NH2 तो है ही, NH2 के साइड में अब जो भी है वही Z ग्रुप है, तो यहाँ पे NH2 था। आ जाओ यहाँ पे NH2 को साइड में करो, NH2 के बजाय जितना भी है वो क्या है Z ग्रुप हमारा। तो देखो Z ग्रुप क्या है हमारा NH और यहाँ पे फिनाइल बन गया, देखो Z ग्रुप यहाँ पे NH और फिनाइल है ना माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये क्या था, ये कंपाउंड इसको कहते थे हम हाइड्राजीन। अब उस हाइड्राजीन में से एक H आपने निकाला, उसके बजाय फिनाइल रिंग डाली, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। देखिए रिएजेंट का नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। और Z कौन सा ग्रुप है आपका, Z आपका ये ग्रुप है, देखो NH और फिनाइल रिंग बना ये प्रोडक्ट। सिंपल है, C डबल बॉन्ड N तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं। अब आपका Z है, तो Z क्या है, Z तो यहां से आप अटैच करते हो, देखो Z आप N के साइड में अटैच करते हो, N के साइड में, डबल बॉन्ड N के राइट साइड में आप Z अटैच करते हो, डबल बॉन्ड N तो ये है, तो आपका Z तो यहाँ पे है, तो कर दो अटैच, क्या बनेगा, देखो NH, यहाँ पे देखो NH और उसके साथ फिनाइल रिंग है। ऊपर वाला कंपाउंड क्या था, हाइड्राजोन। देखो ये बिल्कुल सही वैसा ही है, लेकिन खाली यहाँ पे एक H के बजाय फिनाइल रिंग है, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे फिनाइल हाइड्राजोन माय डियर स्टूडेंट्स। So that means that if you are performing the reaction of aldehydes and ketones with phenyl hydrazine, then the final product formula will be phenyl hydrazone, and this will be the structure of the compound. I hope it is clear.
नाउ कमिंग टू द अनदर डेरिवेटिव, कमिंग टू द अनदर रिएजेंट, दैट मींस अब देखो NH2 तो NH2 की जगह है, देखो NH2 में चेंज नहीं कर रहा हूं। अब आपकी R की जगह क्या है, देखो R की जगह ये और ये सेम है, देखो NH फिनाइल रिंग, खाली फर्क इतना है यहाँ पे दो पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप है। अगर आप नंबरिंग करोगे ना इसकी, दिस विल बी कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कार्बन नंबर 2, दिस विल बी कार्बन नंबर 3, दिस विल बी कार्बन नंबर 4, 5 एंड 6। तो किस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। बाकी तो ऊपर वाला ही है ना, ये ऊपर वाला क्या था, फिनाइल हाइड्राजीन। तो बताओ मुझे इस रिएजेंट का नाम माय डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, इस रिएजेंट का नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल एंड हाइड्राजीन। दिस इज द रिएजेंट, चेक कीजिए 2,4 डाई नाइट्रो हाइड्राजीन। अब आप बताइए इस रिएजेंट में Z ग्रुप कौन है, तो NH2 को छोड़ के बाकी जितना भी है तो वो क्या है, NH फिनाइल रिंग विद 2 नाइट्रो ग्रुप्स। देखो NH फिनाइल रिंग विद 2 नाइट्रो ग्रुप्स। तो ये Z आप वहां पे एडजस्ट कर लो, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो 2 कार्बन के साथ 2 फ्री वैलेंसी, उसके बाद डबल बॉन्ड N, इतना तो पता है हमें। डबल बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ आप Z जोड़ दो, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन ये हुआ, तो Z आपका कौन सा है, देखिए आप NH, उसके बाद फिनाइल रिंग विद 2 नाइट्रो ग्रुप्स। ऊपर वाला कंपाउंड क्या है, फिनाइल हाइड्राजोन, ये भी फिनाइल हाइड्राजोन ही है लेकिन 2 नाइट्रो ग्रुप्स एक्स्ट्रा है। तो फिर क्या नाम होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स कॉल्ड एज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल hydrazone. So this is 2,4 dinitrophenyl hydrazone. This is a very important table. This is a very important conclusions that you are understanding this time. And अगर आपने ये टेबल याद कर लिया ना, अगर आपको ये टेबल समझ आएगा ना, नीट बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपियर हो रहे हैं उनके लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया जो है एक बात बता रहा हूं उनके लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज समझ लो। आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव की तरफ। अगर आपका नेक्स्ट डेरिवेटिव ऐसा है, यानी कि रिएजेंट आपका जो है अमोनिया का डेरिवेटिव वो ये NH2 है, देखो NH2 है, लेकिन अब उस H के बजाय आपका Z ग्रुप कौन है, अब Z ग्रुप इतना बड़ा है NHC डबल बॉन्ड ऑफ NH2, इस ग्रुप। इस रिएजेंट को सेमी कार्बाजाइड कहते हैं। इन चीजों को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी फैसिनेटिंग केमिस्ट्री, प्रोवाइडेड you have the notebook in your hand and you are performing the reaction, you are seeking the mechanism। अगर आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगती है ना करनी, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कभी तंग नहीं करेगी, अदरवाइज इट इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक, ये बहुत कंफ्यूज कर देती है बाद में। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने NH2 ग्रुप तो अपनी जगह ही रखा था जैसे मैं ऊपर करता आया हूं। NH2 के साइड में अब जो भी ग्रुप है वो आपका Z ग्रुप है। तो देखो क्या है आपका ग्रुप NH2 के बिल्कुल राइट साइड में, NHC डबल बॉन्ड ऑफ NH2, ये आपका Z बन गया। तो देखो यहाँ पे Z ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखा है, तो देखो क्या है, खुद ही देखो NHC डबल बॉन्ड ऑफ NH2, देखो NHC डबल बॉन्ड ऑफ NH2। इस रिएजेंट का नाम है सेमी कार्बाजाइड, इस रिएजेंट का नाम है सेमी कार्बाजाइड। जरा प्रोडक्ट की तरफ आइए, करना क्या आपको, सर हमें C डबल बॉन्डेड N जो नाइट्रोजन वाला आइटम है उसके साइड में, राइट साइड में हमने Z ग्रुप को एडजस्ट करना है। उस Z ग्रुप में हमें पता क्या है Z ग्रुप, NHC डबल बॉन्ड ऑफ NH2, और इस रिएजेंट का क्या नाम है माय डियर स्टूडेंट्स, सेमी कार्बाजाइड। तो करो ना डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साइड में Z ग्रुप एडजस्ट, देखो C डबल बॉन्ड N तो है ही, अब देखो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ Z ग्रुप ये रहा, देखो NHC डबल बॉन्ड हो, देखो NHC डबल बॉन्ड हो और NH2 है। इस कंपाउंड को जब आपको ऐसा कंपाउंड दिखे जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फिर सिंगल बॉन्ड NHC, इस ग्रुप को डियर स्टूडेंट्स एमाइड ग्रुप कहते हैं। CONH2, इस ग्रुप को एमाइड ग्रुप कहते हैं। तो आप देखोगे इस पूरे कंपाउंड का नाम है सेमीकार्बाजोन, इस कंपाउंड का नाम है सेमीकार्बाजोन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो 1-2 बार ही देखना पड़े, बट प्लीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है, अगर आपका हालांकि मुझे यहां पर ही दिखाना था, चलो कोई नहीं, मैंने लास्ट में दिखा है। अब देखो NH2 के साइड में कौन सा ग्रुप है, देखो NH2 तो ये है, NH2 के राइट साइड में कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। इसका मतलब है OH ग्रुप ही आपका क्या है, Z ग्रुप। देखो OH ग्रुप ही देख लो, Z ग्रुप है, मैंने Z ग्रुप में नीचे लिखा OH ग्रुप। तो आपका OH ग्रुप जब होगा NH2 के साथ, इस रिएजेंट का नाम है हाइड्रोक्सल अमीन, हाइड्रोक्सल अमीन NH2OH। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, NH2OH, इस रिएजेंट को हाइड्रोक्सल अमीन कहते हैं। इसका Z ग्रुप जो है OH है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है। और आप अपने प्रोडक्ट्स
मैं डाल दो Z के बजाय, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड N और N के साइड में Z है, आपका ZOH है, देखो OH है। तो इस कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोक्सल अमाइन, हाइड्रोक्सल अमाइन। सो इसका मतलब ये है, नहीं हाइड्रोक्सल अमीन तो ये है, हाइड्रोक्सल अमीन तो ये है। इस कंपाउंड का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सल अमाइन तो रिएजेंट का नाम है, इस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्साइन। ओ यहां पे लिखता हूं, आप भी लिख लीजिए, OXIME। इस प्रोडक्ट जो बनता है, जहां पे आपको देखिए C डबल बॉन्ड NOH, उसको हम कहते हैं ऑक्साइन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मैंने आपको दिखाया, जो मैंने आपको समझाया, जिसमें हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस of aldehydes and ketones followed by elimination of water. So there are many reactions. Reaction number 1, reaction number 2, 3, 4, 5, 6, 7. In fact 7 रिएक्शन जो है मैंने आपको एक ही टेबल में सारी समझाई, बिकॉज मैं इस रिएक्शन का ऑलरेडी आपको मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म जो समझा चुका हूं। पहले क्या होता है, पहले कार्बोनिल कंपाउंड पे प्रोटोनेशन होता है, उस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, फिर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम विद पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग करता है, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, जाहिर सी बात है वही रिएक्शन पढ़ रहे हो, वो फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेसिकली होता क्या है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वही डोनेट होती है। मैं मैकेनिज्म में समझा चुका हूं, कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक होता है, तो जो रिएजेंट्स हो गए वो ये हो सकते हैं, अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, और लास्ट में नाइट्रोजन के साथ एक ग्रुप रहता है, इसको जिसको हमने Z ग्रुप कहा। तो फिर हमने कहा आपका Z ग्रुप जो भी होगा, अगर Z ग्रुप H था तो इसका मतलब आपने रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई थी, उस टाइम आपका प्रोडक्ट इमीन बनेगा। देखो Z के बजाय यहाँ पे मैंने H डाल दिया, सिंपल बात है। अगर आपने रिएक्शन करवाई है अल्काइल अमाइन के साथ, तो उस टाइम आपकी Z के बजाय यहाँ पे आप H डाला था, यहाँ पे R डालेंगे, उसको अल्काइल इमीन कहते हैं। और इस वेरी इंपॉर्टेंट, उसको शिफ्ट बेस भी कहते हैं। और उसके बाद आपने हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाई तो आपका हाइड्राजोन बनेगा, आपने फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाई, आपका फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, आपने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाई, आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। आपने माय डियर स्टूडेंट्स फिर सेमी कार्बाजाइड एज अ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई तो आपका सेमी कार्बाजोन बन गया। और अगर आपने हाइड्रोक्सल इमीन के साथ रिएक्शन करवाई तो आपका ऑक्सीन बनेगा। सो these were the important reactions. So far as the nucleophilic addition reactions followed by the elimination of water, because हर एक में water eliminate होगा, of aldehydes and ketones are concerned. So my dear students, we have discussed it. So far as the chemical properties are concerned, my dear students, we have discussed it first the nucleophilic addition reactions. After that, we have discussed that separately. After that we discussed the nucleophilic addition reactions followed by elimination of water, जिनको आप कंडेंसेशन रिएक्शंस भी कहते हो। और हमने डिटेल में आज सारी रिएक्शंस मैंने आपको टेबलेटेड फॉर्म में दिखाई। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो आप एग्जामिनेशन के लिए बहुत, इसको आप स्टार डाल देना। और इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन है, मैं वहां पे स्टार डाल देता हूं, जो जो पूछे जाते हैं यूजुअली। एक तो इमीन का केस, ये याद रखेंगे आप। एक तो ये शिप्स बेस तो माशाल्लाह है ही, ये तो पूछा जाता है, को मैंने माशाल्लाह अभी इस्तेमाल किया। हाइड्राजोन का पूछा जाता है, हाइड्राजोन का भी पूछा जाता है। और हाइड्रोक्सल अमीन जो मैंने लास्ट में दिखाया था, जिसको आप ऑक्सीन कहते हो, ये C डबल बॉन्ड NOH, इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, कभी ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज वीडियो लेक्चर नंबर 11. We had completed the chemical properties to some extent of aldehydes and ketones, and in the next video lecture number 12 we are going to discuss the reduction reactions of aldehydes and ketones. Then we are going to discuss the oxidation reactions of aldehydes and ketones, and then the last टॉपिक ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। उसी के साथ हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा aldehydes and ketones का, दैट इज मिसलेनियस रिएक्शंस, जिसपे आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हो, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अल्डोल कंडेंसेशन एंड केनेसोल रिएक्शंस माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ते हो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।